ऑन करना पड़ेगा। मॉर्निंग सर। हमको सब आता है। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड की आवाज कितनी से आ रही है? यस प्लीज। हाँ ये दो राइथम क्लास 12 के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है राइथम। थैंक यू। लास्ट class we have studied about the potentiometer ना? यस सर। यस सर। एप्लीकेशन हो गया था सर। ओके यस सर डायग्राम बताते फर्स्ट का, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना। ओके दिखवाना। ओके application of potentiometer. First, comparison of EMF of two cells. Recording.
Okay, this is the diagram of potentiometer, systematic diagram of potentiometer. Potentiometer, it is a device which is used to compare the EMF of the two cells and to determine the internal resistance. This is it. What are the principle of potentiometer? Can anyone say? What are the principle of potentiometer? ये शौर्य साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है. शौर्य साहब, शौर्य Sir, साहब. potential difference of any part of the wire is directly proportional to the length of that portion where a constant current passes. Very nice, Piyush. Good. So the principle of potentiometer is that the potential difference across any part of the wire is directly proportional to the length of that portion where a constant current passes. Constant current pass through का मतलब क्या होगा? The galvanometer shows zero deflection at that point. Yes, sir. है ना? Now, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कल समझा दिया था क्या? सर आप एप्लीकेशन Yes sir, आप एप्लीकेशन लिखवा रहे थे. Okay, सुलिका. Application हम लोग डिस्कस कर रहे हैं comparison of two cells. Just write down the cells which is to be compared. कल इसको समझाए थे ना? Yes sir, explain किए थे थोड़ा. Yes sir. Okay. आप लिखवाए थे. Okay, the cells which is to be compared is connected with the device. Initially, the EMF E1 is connected with two-way key. When we press the key, the current flows free. Now, the jockey
is slowly sliding over the wire, and the null point is let Aj equal to L1, where galvanometer shows zero diffraction. According to the principle of potentiometer, VAJ सर ओवर दी के बाद क्या लिखे हैं कहाँ पे? सर नाउ द जॉकी इज स्लोली स्लाइडिंग ओवर दी के बाद Over the wire. The jockey is slowly sliding over the wire, and the null point is obtained. Let Aj equal to L1, where galvanometer shows zero deflection. According to the principle of potentiometer, Daj equal to KL1. यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा. Done, sir. क्या यहाँ Yes, पे जो sir. लैंग्वेज लिखा है उसमें किसी दिक्कत है समझ लो में? सर 1 मिनट से थोड़ा रुकिएगा. ओके ओके ओके. नो सर हो गया सर ओके. यहाँ तो जो लैंग्वेज लिखा है उस लैंग्वेज कहीं पे किसी को डाउट है या नहीं क्लियर हो रहा है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है? नो सर क्लियर है? No, sir. क्लियर है? सर एक बार Yes, बता sir. दीजिए सर. हाँ सुशांत क्या बोल रहे हो बेटा? ये सर थोड़ा सा बता दीजिए सर, इधर थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा है. अच्छा चलो कोई बात नहीं. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या है? एक डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. तो इसी को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो डायग्राम को पहले देखिए. द ईएमएफ जिसको कनेक्ट करना है, जिसको कंपेयर करना है, उसको कनेक्ट किया हुआ डिवाइस. वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है द सेल which is to be compared is connected with the device. Initially the EMF E1 is this E1 is connected with the two-way key. यानी इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा इसके कारण फ्लो करेगा. यहाँ ये इनएक्टिव है, E2 जो है इनएक्टिव है क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं है. When we press the key, इस की को हम प्रेस करेंगे then the current goes to the wire and the jockey क्या करना है? Slowly sliding over the wire and the position of null point को find out करने हैं. So suppose that Aj equal to L1 जहाँ पर galvanometer zero deflection है. अब according to the principle of potentiometer Vaj equal to KL1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. लिख सकते हैं ना. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यही ना है. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ दैट पोर्शन वेयर ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू इट.
दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ऑन दैट बेसिस क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, VAJ को क्या हम इवन लिख सकते हैं, VAJ को क्या हम इवन लिख सकते हैं, Yes, sir. First cell का EMF. है ना, क्योंकि Yes. Yes, sir. when no current यानी I वहां पे जीरो है, in that case जो V इक्वल टू ये हो जाता है ना हमारा, यस सर। Yes, sir. Potential difference across constant है. बिल्कुल। तो ये तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं E1 इक्वल टू KL1, E1 इक्वल टू KL1, Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके ओके, now EMF E1 is removed from the 2dt is removed from 2way T and EMF E2 is connected. Again, by sliding the jockey over the wire, the null point is obtained. Let AJ dash equal to L2, where galvanometer shows zero deflection. According to principle of potentiometer, VAJ dash equal to KL2, VAJ dash equal to E2. So E2 equal to KL2.
हो गया? यस सर, हो गया। Yes, नो sir. सर। ओके ओके ओके, लिखो लिखो। सर हो गया। ओके, now dividing equation 1 by 2. So by knowing the value of L1 and L2, we can compare the event of two sets. कंपेयर कर सकते हैं ना हम लोग, अगर L1 L2 पता हो तो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब जैसे मान लीजिए L1 मान लीजिए आया 300 सेंटीमीटर मान लो। L1 का मान लीजिए हम जो जॉकी को स्लाइडिंग किया 300 सेंटीमीटर आ गया, तुमको आश्चर्य नहीं हो रहा कि 300 सेंटीमीटर कैसे हो गया सर? ये तो 1 मीटर का है, यहाँ पे क्या हो? तो सर आप बोलेंगे 300, सपोज 300 का आया तो सर यहाँ पे तो कैसे हुआ ये बता, ये नहीं लगा तुमको पूछना? यस सर, से बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? मैंने कहा हम लोग फाइंड आउट कर नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक ना? जॉकी को स्लाइडिंग ओवर द वायर कर रहे हैं एंड सपोज एट 300 सेंटीमीटर पे ये नल पॉइंट भी फाइंड आउट। तो ये 300 सेंटीमीटर इस पोटेंशियोमीटर स्केल पे कैसे आएगा? ये जानने की बात होती, जानने चाहिए नहीं जानना चाहिए हम लोगों को, तो जानना चाहिए सर। है ना? सो वायर भी बहुत लंबा, सो वायर का लेंथ बहुत ज्यादा होता है ना? बहुत लंबा नहीं होता है बेटा, वो 1 मीटर का ही होता है। लेकिन कल जो हम फर्स्ट डायग्राम बनाए थे, देखा है तुम? आपको एक वायर इधर है ऐसा देखा बनाए थे कर यस डायग्राम? सर। यस सर। आप कॉपी में पलट कर देखिए कल का डायग्राम हाँ, जो ये हम पहला बनाए थे, देखा है ना? 1 वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर, यस सर। ठीक है? तो फॉर एक्यूरेसी के लिए बढ़िया रिजल्ट आने के लिए प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 4 वायर को यूज करते हैं, मतलब 10 वायर तक यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए।
तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर 300 पे आया, तो 300 पे आया तो इसका मतलब कि ये जो वायर है फर्स्ट सेकंड थर्ड वायर पे आया होगा। Yes, sir. नहीं, अगर 10 वायर ऐसा कनेक्टेड है, 1 इसी तरह से मालूम करते हुए है, अगर 300 सेंटीमीटर पर आया, यानी इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, इस पे आया कहीं पे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 100 हो गया, 200 हो गया, 300 आया। Yes, sir. क्लियर? ये Yes, sir. अगर मान लो इसी तरह से L1 का वैल्यू 300 सेंटीमीटर आ गया और L2 का वैल्यू मान लो 600 सेंटीमीटर आ गया या 900 सेंटीमीटर आ गया, मान लीजिए, ठीक ना? यानी L1 बाय L2 जो आ गया, ये 300 बाय 900 आ गया, 1/3, 1 बाय sir. 3 आ गया। Yes, sir. क्या? Yes, sir. और मान लीजिए E1 और E2 का जो है, ये E1 का वैल्यू मान लीजिए 3 वोल्ट है, इसका 9 वोल्ट है, ये 1/3 हो गया ना? Yes, sir. यानी 1/3 पर 1/3 हो गया, तो यानी रिजल्ट आपका सही आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रैक्टिकल भी करना है आपको इसका, जब भी आप कभी स्कूल खुलेगा हम लोग उससे प्रैक्टिकल करेंगे। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, अगर हमें L1 और L2 का वैल्यू पता होगा तो क्या करेंगे, हम EMF को इजी वे में कंपेयर करेंगे। इस टॉपिक इस एप्लीकेशन में किन्हीं को दिक्कत है समझने में तो पूछ सकते हैं, No, sir. किन्हीं को अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलूंगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो हाँ सर। सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे। To determine the internal resistance of cell, to determine the internal resistance of cell, internal resistance of the cell। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। सर हाँ, जो डायग्राम सर सेल का डायग्राम
ऊपर में सर सेल लगा है वो दोनों निगेटिव टर्मिनल होगा। एक पॉजिटिव ऊपर में है, एक पॉजिटिव सर सर ऊपर में एमीटर एमीटर के बगल में जो सेल बैटरी लगा हुआ है। हाँ तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे ना भाई, नेगेटिव अच्छा पॉजिटिव उसके करेंगे सर तो अच्छा राइट साइड में भी निगेटिव है। देख लेते हैं एक मिनट। राइट साइड में तो पॉजिटिव है, सर बैटरी बैटरी और जो बैटरी, ओ हाँ 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 सही, थैंक यू, ये गलत है। सही, इसको मॉडिफाई ठीक कर लीजिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चे। बन गया डायग्राम। No, sir. ठीक है, देखो इट कंसिस्ट टू कीज K1 and K2. Initially, key K2 is open and key K1 is closed. And by using jockey, the null point is open. Let AK equal to L1, where L1 meter to 0 meter. Okay. Initially, it consists of two keys K1 and K2. Initially, key K2 is open and key K1 is closed. And by using jockey, the null point is open. Let AJ equal to L1, where galvanometer shows 0 deflex. अच्छा इसमें ये बता सकते हो आप, इसमें जो EMF आ रहा है कहाँ से आ रहा है, EMF वैल्यू ये काम कर रहा हाँ यस सर वो करंट है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, VAJ equal to KL1 or E equal to KL1. Now, if K2 is closed and given value of resistance is removed from
resistance box. Now K2 is closed and suitable value of resistance removed from the resistance box. ऊपर का लाइन नोट कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Now K2 is closed and suitable value of resistance is removed from the resistance box. Again, by using jockey, the null point is box. The potential difference here E by B equal to L1 by 2. We know that इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है पता है? सर E minus IR डिस्चार्जिंग के केस में R equal to E by B minus 1 into R. So R equal to L1 by L2 minus 1 into R. Therefore, by knowing the value of L1, L2 and R, we can calculate internal resistance. That's it. So by knowing the value of L1, L2 and R, we can calculate the internal resistance of the same. सर नल पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं? क्या निहारिका नल पॉइंट के बाद सर आवाज थोड़ी कट रही है, क्या बोली? सर पूछ रही है नल पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं? Okay, okay. Again, by using jockey, the null point is obtained. सर थोड़ा सा साइड हो थोड़ा सा सर